Hello everyone. Today our topic for the Indian Constitution is fundamental rights, and we're going to start with Article 17. Before coming to Article 17, उससे पहले एक schedule है fundamental rights का हम सबके सामने. So in this schedule you can see what are different rights which is provided by the Indian Constitution. We'll be covering fundamental rights which are from Article 17 till 35. Article 17 speaks about abolition of untouchability. As we all know कि पहले के टाइम में भी ऐसा होता था कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे, अनटचेबिलिटी पर प्रैक्टिस करते थे. So this article basically abolishes this practice, and by virtue of this article, untouchability has been abolished in all forms. और अगर ऐसा कुछ होता है कि someone still practices untouchability या फिर ऐसा कोई dispute arise होता है, then in that case it would be considered as an offense. Next is Article 18, which talks about abolition of titles. यहाँ पे this article tells us कि किसी भी तरह के titles जो हैं वो हम किसी person को नहीं दे सकते हैं. So titles which are academic or military in nature shall be allowed. ये वो titles है जो कि हम allow कर सकते हैं. Military में there are different ranks. तो वो ranks और वो titles अगर हम किसी को देते हैं, those titles are allowed. But for example, titles such as king, queen, these kind of titles are not allowed. Also, the Indian citizens cannot accept any title from a foreign country. Further, there are certain awards. हमको अलग-अलग awards जो हैं वो मिलते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण इस तरह के. तो अगर ये awards आपको मिल रहे हैं तो वो Article 18 के ambit में cover नहीं होगा. Those awards would not be considered as titles. This was all about Article 18. अब बात करते हैं Article 19 के बारे में. Article 19 जो है ये हमें 6 freedoms जो है वो grant करता है और उन 6 freedoms की बात करता है. The first and the foremost freedom is the freedom of speech and expression. इस आर्टिकल की ये जो फ्रीडम हमारे पास है, इसके बारे में हम सब बहुत बात करते हैं कि क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कितना बोल सकते हैं और किस एक्सटेंट तक हम लोग क्या बोल सकते हैं. यहाँ पे कई बार ये बातें भी होती हैं कि मैंने सामने वाले के लिए कोई डेरोगेटरी स्टेटमेंट या फिर मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे उसकी पब्लिक में जो स्टैंड है, उसकी पब्लिक में जो इज्जत है वो कम हो जाती है. तो इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर हम करते हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल, सो दैट काइंड ऑफ freedom of speech and expression is not allowed. So basically this provision guarantees freedom of speech and expression to every citizen of India. यहाँ पे law जो है वो certain restrictions impose कर सकता है इस article के scope के लिए. And these exceptions further include friendly relations with foreign nations, maintaining public order, regarding the incitement of an offense, defamation or contempt of court. तो हम अगर ये बात करते हैं कि expression यहाँ पे word जो use हुआ है, what is it? What actually does it mean? तो expression यहाँ पे एक बहुत ही wide meaning hold करता है. Expression can be by writing, making film, singing some song, etc. It includes freedom of press, freedom to publish any view without restriction, but subject to restrictions of law.
लॉ ने हमारे ऊपर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बना रखे हैं, हमको उन रेस्ट्रिक्शंस को हमारे माइंड में रखते हुए ही हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज करना होता है. Now, if we come next to Article 19(1)(b), which talks about the freedom to assemble, this provision basically guarantees each individual the freedom to assemble peacefully without arms. आप अगर पीसफुली अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो असेंबल होते हैं विदाउट आर्म्स, तो इस चीज के लिए हमें फ्रीडम दी गई है. However, यहाँ पे भी there are certain reasonable restrictions which may be imposed considering the interest of sovereignty and integrity of the country. पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम पे बनाए जा सकते हैं. This was about freedom to assemble. Next is Article 91(c), which talks about freedom to form associations or unions or cooperative societies. ये जो प्रोविजन है ये अलाउ करता है सिटीजन्स को कि वो एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो बना सके, बट विद सर्टेन एक्सेप्शंस, अगेन कंसिडरिंग द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर. यहाँ पे ये जो राइट्स है ये हमें दे रखे हैं, बट इन पे हर जगह रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, एंड दोस रिस्ट्रिक्शंस आर मेड बाय कीपिंग इन माइंड द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री. By 97th Amendment in 2011, we added cooperative societies in Article 91(c). The next article is Article 19(1)(d), which provides us the freedom to move freely. यहाँ इस प्रोविजन में जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको ये राइट दिया गया है that they can move freely throughout the territory of India. Again, however, यहाँ पे भी certain restrictions जो हैं वो लग सकते हैं. किन grounds पे? Security, public order, or for safeguarding the interest of the scheduled tribes. Again, यहाँ पे every citizen is having the right to move freely पूरे Indian territory में, but यहाँ पे again कुछ restrictions जो है वो लग सकते हैं. Next is the freedom of residence, which is under Article 19(1)(e). ये प्रोविजन हमें ये बताता है कि सारे सिटीजन जो है इंडिया के, दे हैव राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, वो लोग इंडिया के किसी भी पार्ट में दे कैन रिसाइड, बट अगेन यहाँ पे उनको ये जो फ्रीडम दी गई है इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है वो हम लगाएंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. अब हमें क्योंकि ये अधिकार दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, this doesn't mean कि आज कोई पर्सन है वो ये बोल दे कि no, I just want to build my house on the border of India Pakistan, so that thing is not possible, even though you are having the right that you can reside anywhere, right? But again यहाँ पे restriction आ गया कि सिक्योरिटी के ग्राउंड्स पे हम जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे रोक सकता है कि नहीं, आप का ये जो प्लान था कि हम बॉर्डर पे जाके रहें, so that cannot be done because we are having restrictions. Coming next on the freedom of profession, which is under Article 19(1)(g). This provision states that all citizens have the right to carry on any trade or profession or occupation, provided that such trade or profession or occupation is not illegal or immoral. ऐसा कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन जो कि इलीगल या इमोरल है वो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वो हम कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं. ऑल्सो ये जो आर्टिकल है यहाँ पे इसने ये बताया है कि जो स्टेट है वो लॉज बना सकती है which is related to technical or professional qualifications that are required for practicing the occupation or trade. Certain trade, occupation, profession जो है उनको परस्यू करने के लिए, उनको कैरी ऑन करने के लिए स्टेट जो है दे कैन मेक टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के लॉज. This was all about Article 19, which guaranteed us these 6 freedoms.
with reasonable restrictions, which is based upon the security, integrity of our country. Coming to the next article, Article 20, it speaks about the protection of citizens in case of conviction of offenses. यहाँ पे ये जो provision है, it deals with the protection of citizens. यहाँ पे इसने 3 तरह की protections की बात करी है. Number 1 is retrospective criminal legislations. Second is double jeopardy. And the third one is prohibition against self-incrimination. So retrospective criminal legislation, we can also say about the prohibition against ex post facto laws. So Article 20 Clause 1 basically हमें ये बताता है that after the act has been done, then it is declared as a crime or the punishment is enhanced. Both things are prohibited in Article 20 Clause 1. But change in procedure of law subsequently is not prohibited under Article 20 Clause 1, sorry. This applies only on the case of criminal laws. No subsequent enhancement of penalty for the past offenses is done here. Coming to the double jeopardy, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर एक पर्सन जो है वो ऑलरेडी प्रोसिक्यूट उसको कर दिया गया है किसी ऑफेंस के लिए और उसको उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिल गई है, तो उसको हम वापस से उसी सेम ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं कर सकते हैं. If prosecuted and punishment was not given, then this provision will not apply. ठीक है, मतलब अगर एक पर्सन जो है ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट किया गया और उसे पनिशमेंट मिल गया, पनिशमेंट मिलने के बाद भी अगर उस पर्सन को हम अगेन उसी सेम ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट करके फिर पनिश करते हैं, then this is what this article comes in, then this is where the article comes into play. पर अगर ऐसा हुआ है कि उस पर्सन को सिर्फ प्रोसिक्यूट किया गया उस ऑफेंस के लिए एंड उसको पनिशमेंट नहीं मिली है, then in that case this provision will not apply. Prosecution is generally of offense and it is before a court or judicial tribunal. यहाँ पे 3 क्राइटेरियाज हैं इस प्रोविजन के, which is number 1 accused, number 2 prosecution by court or tribunal, and third one is the punishment. तो यहाँ पे जो section 300 of CRPC है, it is wider than clause 2 of article 20. So section 300 CRPC is wider than the clause 2 of article 20. Section 300 will apply both in the case of conviction and acquittal, but 20 clause 2 will apply in conviction only. Now the next one is prohibition against self-incrimination. Self-incrimination इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आज कोई ऑफेंस करा है तो I have the right to be quiet and not to speak anything related to the offense which I have committed. तो यहाँ पे ये जो right है ये हर person को available है, whether he or she is a citizen or a non-citizen. It says that no person shall be compelled to be witness against himself. हम किसी भी पर्सन को कंपेल जोर जबरदस्ती से हम उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम अपने खिलाफ ही तुम विटनेस बनो. Furnishing evidence is not equivalent to compulsion to be witness. So one can be compelled to furnish evidence. For example, अगर हम यहाँ पे ये जो बात यहाँ पे कही गई थी इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम उस पर्सन को विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं, पर अगर हमको कोई एविडेंस उससे चाहिए तो हम उसके लिए उसे कंपेल करेंगे. एविडेंस सच एज जैसे कि उसके ब्लड सैंपल्स हो गए, उसके फुट एंड फिंगरप्रिंट्स हो गए, उसकी पाम प्रिंट्स, थंब इंप्रेशंस. तो ये जो फोरेंसिक में हमको उस
क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या उस पर्सन ने किया है या नहीं, हमको कुछ सर्टेन फॉरेंसिक एविडेंसेस चाहिए होते हैं, तो उन एविडेंसेस के लिए दैट पर्सन कांट से यू नो एंड यू कैन कंपेल। पर अगर हम वहीं पे उस पर्सन को ये कहें दैट यू हैव टू बिकम अ विटनेस, आप बताइए, आप अपने गुनाह के बारे में बोलिए, तो यहाँ पे दैट पर्सन हैज द राइट टू बी क्वाइट, टू चूज साइलेंस एंड नॉट टू बी बिकम विटनेस ऑफ हिज ओन ऑफेंस। And this is available to the accused and not to the witnesses. ये जो राइट है, ये जो अधिकार हमें दिया गया है, ये अक्यूज जो है उसको मिला है। Under prohibition against self-incrimination, there's a case, Selvi versus State of Karnataka. ये जो केस था, इसमें ही बताया गया था कि पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस या फिर ब्रेन मैपिंग, ये जो टेस्ट हैं, they are held involuntary and are unconstitutional as they violate Article 20 Clause 3. Certain tests such as brain mapping, narco analysis वगैरह को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में। सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 20, जो कि एक अक्यूज जो है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Now the next article, which you can see on the screen, is about protection of life and personal liberty. जी हाँ, ये वही आर्टिकल है जो बहुत चर्चा में रहता है, और इस आर्टिकल के बारे में बहुत लोग बहुत बातें भी करते हैं, और हमें ये भी पता है कि इस आर्टिकल का स्कोप जो है वो सिर्फ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को डिफरेंट जब इन आर्टिकल में अलग अलग तरह के केसेस आए, तो इसमें इसी आर्टिकल के अम्ब्रेला में अलग अलग तरह के राइट्स जो थे वो इंश्राइन किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम ये हेडिंग पढ़े प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इसका जो स्कोप है वो वाइडर होता ही गया समय के साथ। So basically this provision states that no individual must be deprived of his life and personal liberty by the state except as per the procedure laid down by the law. ठीक है, अब ये जो राइट है ये सारे सिटीजन और नॉन सिटीजन उनको अवेलेबल है। Now coming on to the point of right to life, ठीक है, राइट टू लाइफ का क्या ये मतलब है कि हम सिर्फ जी रहे हैं, सो मेरली लिविंग डजंट मीन राइट टू लाइफ। यहाँ पे एक अच्छी डिग्निफाइड लाइफ जो है वो एक इंसान जीना चाहता है। सो राइट टू लाइफ की यहाँ पे बात does not include merely living, but it is extended to a dignified life. The said article has a very wide scope and its interpretation has been molded continuously over the decades. जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो आर्टिकल है इसका जो स्कोप है वो समय के साथ बढ़ता ही गया, और इसमें अलग अलग तरह के राइट्स भी हमें मिलते गए। Right to life is a fundamental aspect of life without which we cannot live as a human being. And it includes all those aspects of life which go to make a human being's life meaningful, complete and worth living. तो right to life जो है वो ऐसा fundamental right है जो कि एक इंसान की जो लाइफ है उसको मीनिंगफुल, कंप्लीट और वर्थ लिविंग बनाए, उस तरह की लाइफ का हमें फंडामेंटल राइट जो है वो गारंटी किया गया है। It is only the article in the Constitution that has received the widest possible interpretations. Again, coming to this point, ये चीज बार बार आप भी अपने दिमाग में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके बहुत इंटरप्रिटेशंस हुए थे। Under Article 21 of the Indian Constitution, the right to shelter, growth, and nourishment are mentioned because it is the bare necessity, minimum and basic requirements that are essential and unavoidable for a person for the right to life and other rights. ठीक है, अगर हम right to life के बारे में सीधी तरह एक बेसिक ह्यूमन की तरह सोचते हैं तो तीन चीजें, और एक फेमस डायलॉग भी आपने सुना होगा कि तीन चीजें ही चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए। सो दिस इज समथिंग, ये ऐसी राइट है जो कि राइट टू लाइफ से कनेक्टेड है, राइट। तो इस तरह की जो राइट्स थी ये भी मेंशन करी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, और लाइफ से रिलेटेड जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज है और डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए जो भी नेसेसिटीज हैं वो भी हमें प्रोवाइड करी गई अंडर दिस आर्टिकल।
Justice Bhagwati in Bandhuwa Mukti Morcha versus Union of India held that it is the fundamental right of everyone in this country to live with human dignity free from exploitation. Again, यहाँ पे भी इस केस में जस्टिस भगवती ने भी हमें यही कहा कि राइट, फंडामेंटल राइट जो है वो सबको मिली है और यहाँ पे उनको ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है बिना किसी एक्सप्लॉइटेशन के. इफ समवन इज एक्सप्लॉइटिंग यू और उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिटेरिएट हो रही है, तो यहाँ पे अगेन यू कैन स्टैंड एंड यू कैन से दैट यू द राइट अंडर आर्टिकल 21 हैज बीन गारंटीड टू यू व्हिच इज राइट टू लाइफ. तो दिस इज अबाउट राइट टू लाइफ कि हमें किस तरह से और क्या स्कोप था राइट टू लाइफ का. वो सिर्फ महज जीने तक सीमित नहीं था, उसके अलग अलग पहलू भी जो है वो इसमें कवर किए गए थे. टॉकिंग एंड कमिंग ऑन टू द राइट टू पर्सनल लिबर्टी. यहाँ पे अगेन अब हम ये सोचेंगे कि लाइफ तो हो गई, अब पर्सनल लिबर्टी ये क्या है, इसमें क्या बातें हैं ऐसी और हम इसे क्यों डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में. So coming to the point that no person shall be deprived of personal liberty according to the procedure established by the law. हर किसी को पर्सनल लिबर्टी यानी कि उसकी खुद की एक सर्टेन फ्रीडम जो है एक पर्सन को वो मिलनी चाहिए. और अगर वो जो फ्रीडम उसको नहीं मिल रही है तो ऐसे में अगेन ही द राइट of getting such personal liberty is being guaranteed under Article 20 of the Constitution. So law basically says that personal liberty does not mean freedom from physical restraint. Rather, it means and covers all those things by which freedom or liberty can be enjoyed. तो यहाँ पे अगेन वही चीज आ गई है कि पर्सनल लिबर्टी जो है क्या उसका मतलब ये है कि हमें कोई फिजिकल रेस्ट्रेन जो है हम उससे आजाद हैं? नहीं, इसका अगेन स्कोप थोड़ा बढ़ा दिया गया और यहाँ पे ये कहा गया कि ये वो सारी चीजें कवर करता है जहाँ पे फ्रीडम और लिबर्टी को हम अच्छे से एंजॉय कर सकें. आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू ऑल कि आर्टिकल 21 जो है उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हुए थे, उसका स्कोप बहुत वाइड है. तो राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ लाइफ तक लिमिटेड नहीं है, पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल रिस्ट्रेंट्स ना हो उस तक लिमिटेड नहीं है, इनके स्कोप जो है वो बढ़े हुए हैं काफी. Law says that personal liberty does not mean freedom from personal restraint. As I have told you just now कि यहाँ पे liberty और freedom जो है उसको हम enjoy करें, वो सारी चीजें जो है ये आर्टिकल कवर करता है. So there was a very famous case of A.K. Gopalan versus State of Madras. ये जो केस था ये बहुत चर्चा में रहा and this case was also noted as a landmark case. So basically what happened in this case was this case revolved around the Preventive Detention Act of 1950, which allowed the government to detain individuals without trial if they were deemed to be a threat to national security. अगर ऐसा कोई पर्सन जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, उस पर्सन को हम बिना किसी ट्रायल के, बिना उससे कोई वजह बताए हम उसे डिटेन कर सकते थे. This was about the act. यहाँ पे A.K. Gopalan, a communist leader, this person challenged the constitutionality of this law, and the Supreme Court upheld the law and ruled the citizens could be detained. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक्ट था उसमें जो ये क्लॉज था जिसमें इसने ये कहा था that a person can be detained if he is a threat to national security without a trial, उस चीज को upheld किया in the case of A.K. Gopalan versus State of Madras. पर यहाँ पे जो बात कही वो अगले केस में एकदम बदल चुकी थी. And again there was a case of Maneka Gandhi versus Union of India, जो कि 1978 में आया था. So in this case, Maneka Gandhi, the Supreme Court gave a new direction to Article 21. क्योंकि इस आर्टिकल में अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेशंस हुए, अलग अलग मीनिंग्स और स्कोप बढ़ाया गया, तो जाहिर सी बात है कि केस के बाद केस बातें जो थी वो और अच्छे से सामने आते गई. तो यहाँ पे आर्टिकल 21 जो है इसका डायरेक्शन, इसका रुख ही अलग तरीके से मोड़ा गया. And it was said that the right to life is not merely a physical right, but it includes the ambit of rights to live with human dignity. यहाँ पे
राइट टू लाइफ को ह्यूमन डिग्निटी से कनेक्ट करा और कहा इसका एम्बिट जो है, इसका स्कोप जो है वो बहुत वाइड है. The court overruled the Gopalan's case and said that Article 19, 14 and 21 are connected. जो गोपालन के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि ये जो आर्टिकल्स हैं इनको हम अलग अलग ही रखेंगे, और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक्ट था उसके अंदर वो जो लॉ था वो प्रिवेल कर रहा था. बट अगेन इस केस के अंदर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को ओवर रूल करते हुए ये कहा कि आर्टिकल 19, 14, 21 ये सब कनेक्टेड है आपस में, एंड एनी लॉ मस्ट मीट द स्टैंडर्ड्स सेट बाय दीज आर्टिकल्स. कोई भी ऐसा लॉ जो बनता है उन लॉज को इन आर्टिकल्स के जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनको मीटअप करना ही पड़ेगा. The court decided that personal liberty should be understood broadly and liberally, not as a narrow and strict one. Personal liberty को हम सिर्फ एक ही दिशा में, एक ही तरफ देखते हुए ही नहीं डिसाइड कर सकते. पर्सनल लिबर्टी का जो हमें स्पेक्ट्रम है वो वाइड करना पड़ेगा और उसको ब्रॉडली देखना पड़ेगा. The most important component of the ruling was interconnection is established between the stipulations of Article 19, 14 and 21. सबसे मेन बात जो इस केस में थी जो हमने देखी वो ये था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आर्टिकल्स को इंटरकनेक्टेड बताया और कहा कि इन आर्टिकल्स के स्टैंडर्ड्स जो सेट करे गए हैं उनको दूसरे लॉज को फुलफिल करना ही पड़ेगा. By binding these phrases together, the Supreme Court made them indivisible and created a single entity. सुप्रीम कोर्ट ने इन फ्रेजेस के साथ में ऐसे बाइंड किया कि इनको एक सिंगल एंटिटी की तरह ही सामने रखा गया. So, if concluding everything about Article 21, आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी का स्कोप बढ़ा. उसमें अलग अलग तरह के जो राइट्स थे जो कि इन दो मेजर राइट्स को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट थे वो भी ऐड किए गए. Supreme Court's decision paved the way to the right to clean water, clean air, liberty from excessive noise, basic education, fair trial, speedy trial, right to ability to earn a living, legal assistance, right to food, right to sterile environment, right to medical care, and other important rights are to be included in Article 21. अभी जो सारी राइट्स आपके सामने हैं जो भी आपको दिख रहे हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ें तो ये जो राइट्स हैं ये हमारी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को इजीली सस्टेन जो हम कर सके उनसे ही रिलेटेड ये जो राइट्स थे सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग डिसीजंस में हमारे सामने लाए अंडर आर्टिकल 21. सो द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 इज मच मोर वाइडर. जो आप महज हेडिंग में पढ़ते हैं सिर्फ उतना ही आर्टिकल 21 नहीं. Okay. Sorry for the interruptions. So coming back to the discussion of Article 21, आपको मेरी सारी बातें, केस लॉज और जो स्कोप है आर्टिकल 21 का, आई होप समझ में आ गया होगा. So this was all about Article 21 of Indian Constitution. अब अगला आर्टिकल जो हमारे सामने है आर्टिकल 21A, which talks about pre-education for children of age 6 to 14 years of age. ये जो प्रोविजन है ये इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2002. It mentions that the state must provide free and compulsory education to all children between the ages of 6 and 14. यहाँ पे स्टेट फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो 6 साल से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को प्रोवाइड करेगा. Now, Article 22 talks about the protection against arrest and detention in certain cases. So this provision is extended to both citizens and non-citizens. ठीक है, इसका मतलब citizens और non-citizens दोनों पे ही ये जो आर्टिकल है, ये जो provision है, ये अप्लाई होता है. It provides certain procedural safeguards to people in case of an arrest. It is pertinent to note that this provision is not a fundamental right against detention and arrest. ये बेसिकली ये जो प्रोविजन है ये हमें क्या बताता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो अरेस्ट, इफ देयर इज सम पर्सन, ठीक है, तो उस पर्सन को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं. एक प्रोसीजरल सेफगार्ड है ये बेसिकली टू द पीपल इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन. The right aims to prevent arbitrary arrest and detention.
अब अगर ऐसा हो कि जबरदस्ती हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, उसको वजह भी नहीं बता रहे हैं, ऑल्सो उसकी फैमिली को भी ये सब पता नहीं लगने दे रहे हैं, तो दिस इज समथिंग दिस आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो राइट है ये बेसिकली यही एम करता है कि आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन जो है वो प्रिवेंट किया जाए। This provision does not include the people arrested under preventive detention laws and enemy aliens. This article further provides the following. अभी आर्टिकल जो है ये जो प्रोविजन है ये दो चीजें इंक्लूड नहीं करता। पहला, ऐसे कोई पर्सन जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में अरेस्ट हुए हैं, दूसरे वो कोई एनिमी एलियंस है, उनपे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा, बट अदर देन दैट सिटीजन और नॉन सिटीजन पे ये जो प्रोविजन है ये एक्सटेंड होता है। ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करता है। नंबर 1 इज अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1। This provision states that any individual who is in custody has to be informed as why they have been arrested. अगर एक इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो ये जान सकता है कि उसे वो अरेस्ट क्यों किया गया है। ऑल्सो दे मस्ट नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। हर उस पर्सन के पास ये राइट है कि वो लॉयर को कंसल्ट कर सकता है। So Article 22 Clause 1 basically what does it tell us? It tells us that if a person has been arrested, he has the right to know the reason and also to consult a lawyer. Next is Article 22 Clause 2. This provision states that the arrested individual should be produced before a judicial magistrate in 24 hours of their arrest. This provision further states that no individual who has been arrested can be held in custody for more than the period fixed by the judicial magistrate. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 22 क्लॉज 2 है ये हमें सीधी सी ये बात बता रहा है कि अगर कोई भी पर्सन जो है उसको अगर आपने अरेस्ट किया है, सो दैट पर्सन विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर उसके अरेस्ट के वो जो पर्सन है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस हमें करना ही पड़ेगा। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो पीरियड दिया है उसके अरेस्ट का, उस पीरियड को आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो जो कस्टडी का जो पीरियड है वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फिक्स किया था उसी के मुताबिक आप उसको अरेस्ट में रख सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 22। अब हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यहाँ पे हमारे पास में है आर्टिकल 23 which talks about the prohibition of traffic in human beings and forced labors। अब यहाँ पे इन्होंने बेसिकली इस आर्टिकल में ये बताया है कि कुछ चीजें हैं जो प्रोहिबिटेड है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, फोर्स्ड लेबर, ठीक है, these certain things are being prohibited and these are punishable in accordance with law। State can impose compulsory service for public purpose। यहाँ पे उनके ऊपर कंपल्सरी सर्विस जो है वो भी स्टेट लगा सकती है पब्लिक पर्पस के लिए। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 23। Article 24 talks about the prohibition of employment of children in factories, etc. ऐसे कोई भी चाइल्ड, ऐसा कोई चाइल्ड जिसकी उम्र 14 इयर्स यानी कि 14 वर्ष जो है उससे कम है, तो वो जो चाइल्ड है उसके ऊपर एक प्रोहिबिशन है दैट ही कैन नॉट वर्क इन द फैक्ट्री, माइन और ही कांट डू एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो जो आर्टिकल 24 है, it basically states about a child who is below 14 years of age cannot work. He is prohibited for the employment in any factory, mine or hazardous employment. बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि the employment of children in non-hazardous work is legally allowed. Certain laws were also passed by the parliament with regard to this provision. और वो laws क्या थे? Namely, Factories Act
1948, the Mines Act of 1952, the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Act 2016, etc. बहुत सारे जो है डिफरेंट एक्ट्स भी लाए गए इस आर्टिकल को देखते हुए, और वो जो एक्ट है वो भी यही बताते हैं कि किस तरह से चाइल्ड जो है कौन सी एज में किन किन जगहों पे काम कर सकता है, कहाँ काम नहीं कर सकता है, कौन से एम्प्लॉयमेंट हजार्डस है, एक्सेट्रा. So this was about Article 24. Now coming to the right to freedom of religion. So now यहाँ पे हमें पता है इंडिया जो है यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स जो है वो प्रैक्टिस होते हैं, एंड वी आर अ सेक्युलर स्टेट. हम हर एक रिलीजन को इक्वली मानते हैं और इक्वली मान्यताएं देते हैं. तो इनकी बात करते हुए हमने ये देखा कि यहाँ पे there are certain articles which is related to the right to freedom of religion. Article 25 talks about freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. So basically ये जो provision है, it guarantees the freedom of conscience, the freedom to profess, practice and propagate one's religion to all citizens. यहाँ पे हमारे पास ये freedom है कि हम लोग जो religion है हमारा उसको practice कर सकते हैं, profess कर सकते हैं. ठीक है. However, the said freedoms are subjected to public order, health and morality. आप अपना जो फ्रीडम है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, बट अगेन दोस फ्रीडम, दैट सर्टेन फ्रीडम इज सब्जेक्टेड टू द पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी. This article further mentions that the state can make laws to regulate or restrict financial, economic, political or other secular activities relating to religious practice. It further allows the social welfare and reforms of opening Hindu religious institutions of public nature to all sections and classes. So basically इस सेक्शन में ये यहाँ पे इस आर्टिकल में आगे ये बात कही गई कि जो स्टेट है वो लॉस बना सकता है टू रेगुलेट या फिर रेस्ट्रिक्ट कर सकता है फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या फिर अदर सेक्युलर एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस को देखते हुए. This was about Article 25. Article 26 talks about the freedom to manage religious affairs. This provision states that subject to morality, health and public order, every religious denomination has the following rights. Again यहाँ पे जो है इन तीन चीजों का सब्जेक्ट रख दिया गया कि इन तीन चीजों को आपको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, you can do the following. You have the following rights. So these are the right to form and maintain institution of religious and charitable intents. आप जो है आपके पास ये राइट है कि आप मेंटेन कर सकते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि रिलीजियस या चैरिटेबल इंटेंट से बनाए गए हैं. आपके पास राइट है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, द राइट टू एक्वायर इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, द राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ. ठीक है. तो आप जो है अपने रिलीजियस अफेयर्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं. यू कैन मेंटेन इंस्टीट्यूशंस, you can run its own affairs, manage its own affairs, you can acquire movable and immovable property and administer such property according to the law. But again आपको ये सारे जो rights हैं, इन rights को subjected हैं ये rights किसके? Morality, health and public order के. So this was about Article 26. Coming to Article 27, it talks about freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. As per this provision, no taxes shall be imposed on such proceeds which are directly used for promotion and or maintenance of any particular religion or religious denomination. इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी तरह के जो टैक्स हैं वो इम्पोज नहीं होंगे किस पे? On such proceeds which are directly used for, ऐसे proceeds पे जो कि सीधे सीधे किसके लिए यूज हो रहे हैं? प्रमोशन और मेंटेनेंस किसी पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन का, तो उनके ऊपर नो टैक्सेस शैल बी इम्पोज्ड ऑन सच प्रोसीड्स. Next is Article 28, which talks about the freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions. ये जो आर्टिकल है इसने क्या बताया? ये जो प्रोविजन है इसने एनेबल करा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस that are maintained by religious groups to disseminate religious instructions.
यहाँ पे ये जो है हमको इनेबल करता है कि हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो कि रिलीजियस ग्रुप के थ्रू मेंटेन करे जाएंगे। और ये क्यों बनाए गए हैं? ताकि हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिसेमिनेट कर सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट the right to freedom of religion, जिसमें हमने आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 देखा। अगली जो राइट्स हैं हमारे पास वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सबसे पहला है हमारे पास आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप का जो इंटरेस्ट है उसको ये प्रोटेक्ट करे, उसको ये बचाए। क्योंकि वी हैव सीन कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके ऊपर जो मेजोरिटी ग्रुप है, दे बेसिकली उनको वो दबाता है, उनको वो उठने नहीं देता है। तो उनको देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए आर्टिकल 29 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 tells about, it states that any section of the citizens residing in India having a distinct culture, language or script have the right to conserve their language, culture and script। यानी कि इंडिया में रहता हुआ ऐसा कोई सिटीजन जिसका कुछ अलग ही कल्चर है, अलग ही भाषा है, अलग ही लिखने का तरीका है या फिर अलग स्क्रिप्ट है, तो वो उन सब चीजों को, अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। तो उनकी ये इनका जो इंटरेस्ट था, इसको देखते हुए उनको प्रोटेक्शन दिया गया। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट that the state must not deny admission into educational institution maintained by it or those that receive aid from it to any person based on the grounds of race, religion, caste, language or any of them। इस सब क्लॉज में, आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में यहाँ पे क्या बात करी गई कि ऐसा कोई भी पर्सन जो कि अलग रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज से है, कहीं से भी है, तो उस पर्सन को जो है हम रोक नहीं सकते, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट मेंटेन कर रहा है या फिर उस स्टेट उसको एड कर रहा है, वहां पे एडमिशन के लिए वी कांट स्टॉप दैट। सो आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जहां पे पहले उसने ये बात करी कि अगर किसी का डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर या स्क्रिप्ट है तो वो उसको कंजर्व कर सकता है। आगे उसने ये बात करी कि यहाँ पे स्टेट जो है वो डिनाई नहीं कर सकता ऐसे किसी भी पर्सन का एडमिशन उसके खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में on the grounds of race, religion, caste, language or any of them। Coming to article 30, article 30 talks about right of minorities to establish and administer educational institutions। यहाँ पे क्या कहा गया? that the right is provided to minorities to form and govern their own educational institution। this is why the said provision also known as charter of educational right। यहाँ पे ऐसा कोई minority group, यहाँ पे ऐसे कोई minority जो है जो जिसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे आर्टिकल 30 ने ये कहा कि वो जो माइनॉरिटी है वो खुद का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉर्म कर सकती है। और यही वजह है कि क्यों हम लोग जो है इस प्रोविजन को चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट्स बोलते हैं। Article 30 clause 1 talks about the provision, it states that all religious and linguistic minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice। ऐसे कोई हर तरह के रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है उनके पास ये अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? कि वो एडमिनिस्टर और एस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी चॉइस के। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट that this provision provides the state when granting aid to educational institutions shall not discriminate against any educational institution based on that it is under the management of minority। यानी कि स्टेट जो है अगर वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसको एड ग्रांट कर रहा है तो स्टेट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऐसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि एक माइनॉरिटी ने बनाया है, दूसरा जो एक माइनॉरिटी ने नहीं बनाया है, तो स्टेट जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता है, उसको इन दोनों को इक्वली एड करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आर्टिकल 30 क्लॉज 2 tells us about। Coming to article 32, it tells us about the right to constitutional remedies। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको गारंटी करता है सर्टेन रेमेडीज
इफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस आर वायलेटेड, आज अगर किसी भी सिटीजन की फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो ऐसे में वो क्या करेगा, तो उसका जो है आर्टिकल 32 हमको बताता है that the state does not have the power or authority to infringe upon and curb the right of any individual. अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी करा है तो स्टेट के पास उस राइट को आपसे छीनने का या आपकी उस राइट का किसी भी तरह का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होता। अगर किसी भी केस में ऐसा होता है कि आपका जो है जो राइट है वो वायलेट हो गया है, द अग्रीव्ड इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट्स। आप लोग जिनका भी अधिकार जो है वो वायलेट हुआ है वो कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। They can even directly approach to the Supreme Court. Yes, one can directly approach the Supreme Court of India, which can issue writs for the enforcement of fundamental rights. There are 5 kind of writs. अब यहाँ पे क्या बात करेंगे कि आप अंडर आर्टिकल 32 सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि मेरा एक फंडामेंटल राइट जो है ये सर्टेन फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है। यहाँ पे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्स जो कि कोर्ट इश्यू कर सकता है, दैट आर habeas corpus, tertiary, prohibition, mandamus, quo warranto. Coming to the writ of habeas corpus, तो habeas corpus का सीधा सा मतलब ये होता है to have the body of, यानी कि इस रिट के मुताबिक the court has the authority to call upon any person who is being detained to assess the legality of their detention. ऐसा कोई भी पर्सन जिसका डिटेंशन जो है वो किया गया है तो कोर्ट इस रिट के थ्रू उस पर्सन को बुला सकती है कि कॉल दैट पर्सन, एंड अब वो वहां पे डिटरमाइन करेगी कि उसको जो डिटेंशन था उसकी लीगैलिटी क्या है। नेक्स्ट, कमिंग टू द रिट ऑफ सर्जरी, दिस मींस टू बी सर्टिफाइड। सर्जरी का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड। By the virtue of this writ, a higher court reviews a case that has been tried in a lower court. एक ऐसा केस जो कि लोअर कोर्ट में ट्राई हुआ था, उस केस को हायर कोर्ट रिव्यू करता है। It is basically employed to seek judicial review of a decision given by a court or a government authority. लोअर कोर्ट ने किसी भी केस पे कोई भी डिसीजन दिया है, उस केस को जो है, जो केस जो लोअर कोर्ट ने ट्राई करा है उसको जो हाई कोर्ट उसको रिव्यू करता है, और उस रिव्यू के लिए यहाँ पे सर्जरी रिट जो है हमारे काम आती है। अगला है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय अ कोर्ट to restrict or prohibit the lower courts, tribunals or other quasi judicial authorities from acting beyond their legal authority. हर ट्रिब्यूनल, लोअर कोर्ट और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज की एक लीगल अथॉरिटी जो है वो तय होती है। अगर वो उसके बियॉन्ड जाता है तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन यहाँ पे आकर उन ट्रिब्यूनल्स को, उन लोअर कोर्ट्स की जो लीगल अथॉरिटी है, अगर वो उसके बियॉन्ड जाते हैं, सो दिस रिट कम्स इनटू पिक्चर एंड इट कैन स्टॉप देम। It is employed to check inactivity, whereas the writ of mandamus checks activity. यहाँ पे प्रोहिबिशन जो रिट है वो क्या चेक करती है कि ये लोग किस तरह से कितनी पावर को अपना जो लीगल अथॉरिटी है उसके बियॉन्ड जाके क्या क्या काम कर रहे हैं, तो ये उसको रोकता है। सो इट चेक्स इनएक्टिविटी। वहीं पे मैंडेमस चेक्स एक्टिविटी, उसकी हम बात नीचे करेंगे। मैंडेमस जो है, दिस टर्म बेसिकली मींस वी कमांड। ओके, द टर्म मैंडेमस मींस वी कमांड। This writ is employed by the court to direct a public official who has failed or refused to do his duty to resume his work. ठीक है, ये रिट कोर्ट कब काम में लेती है? जब उसे किसी पब्लिक ऑफिशियल को एक बोलना होता है that who has failed or refused to do his duty to resume his work. आपने अपना काम नहीं करा है तो प्लीज आप अपना काम करिए, उस काम करिए। इस वाले एक्ट को करने के लिए हम कौन सी रिट काम में लेते हैं? मैंडेमस। यहाँ पे इसका मतलब होता है वी कमांड। सो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट जो है वो कमांड करता है, वो बताता है उस पर्सन, उस पब्लिक ऑफिशियल को दैट यू हैव टू डू हिज ड्यूटी, यू हैव टू रिज्यूम योर वर्क। The writ of mandamus is also issued against a public body, an inferior court, a corporation, a tribunal or a government. ठीक है, ये जो रिट है ये पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, इंफीरियर कोर्ट्स के अगेंस्ट, कॉर्पोरेशन, ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट जो है यूज कर सकते हैं। इस रिट का मतलब क्या था? इस रिट मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। यहाँ पे जो कोर्ट है वो डायरेक्ट करता है किसको? पब्लिक ऑफिशियल्स को, कि आप लोग जो है वो अपनी ड्यूटी फेल कर रहे हैं, आप रिफ्यूज कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज करने से, तो काइंडली रिज्यूम योर वर्क। तो यहाँ पे मैंडेमस चेक्स एक्टिविटी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ
कि क्या वो पब्लिक ऑफिशियल काम कर रहा है, इज ही एक्टिव डूइंग हिज वर्क और नॉट, उसको चेक करने के लिए, उसको कमांड करने के लिए रिट ऑफ मैंडेमस हमारे काम आती है. Coming to the next writ, which is writ of quo warranto. The term quo warranto means by what authority or warrant the Supreme Court or High Courts employ this writ to avoid illegal usurpation of public office by an individual. The writ of quo warranto authorizes the court to examine the legality of a person's claim to a public office. आप जो है ये जो रिट ऑफ क्वो वारंट है, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो यूज में कब लेती है, अगर कोई इलीगल तरह से, इफ समवन इज होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस इलीगली, या फिर वो जो इंडिविजुअल है वो कुछ इलीगल असर्टेशन कर रहा है उस पब्लिक ऑफिस का, तो इन दैट केस द रिट ऑफ क्वो वारंटो comes into picture, और वहां पे we ask that by which authority और by which position आप कैसे और आप क्यों किस अधिकार से एक सर्टेन काम कर रही हैं. तो in that case writ of quo warranto helps us. So these were the writs, which is habeas corpus, certiorari, prohibition, mandamus, and quo warranto. Coming to Article 33, it talks about restrictions of on fundamental rights on members of armed forces, forces for maintenance of public order, Bureau of Intelligence or counterintelligence, employees in telecom system set up and above. So basically ये जो Article 33 है, ये जो Article 33 है ये बात करती है कि किस तरह के restrictions on fundamental rights, ये जो members हैं on the given list, ये जो 4 members हैं इनके related ही बातें कर रहे हैं under Article 33. Article 34 basically हमको बस इतना बताता है कि अगर कहीं पे मार्शल लॉ है, if when martial law will be there, no fundamental right will be there. Article 35 talks about for enforcement of fundamental rights, law will be made by parliament and not state legislature. फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए हमको अगर कोई भी लॉ चाहिए तो वो जो लॉ है पार्लियामेंट बनाएगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट विल मेक लॉ फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर एक्ट्स डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंसेस अंडर दिस पार्ट. पार्लियामेंट ही यहाँ पे जो है वो लॉ बनाएगा और प्रिस्क्राइब करेगा पनिशमेंट्स फॉर द एक्ट्स व्हिच आर बीन डिक्लेयर्ड as offenses. So this was all about the fundamental rights under Indian Constitution. So just concluding, we discussed about Article 17, which talked about abolition of untouchability. Article 18, abolition of titles. 19 guarantees certain rights to us. Article 20 talks about the conviction of offenses. 21 talks about the protection of life and personal liberty, the most important article, which is having a very, very wide scope. Article 21A talks about the free education to children. 22, protection against arrest and detention in certain cases. Article 23 talks about the prohibition in traffic in human. 24 talks about prohibition of employment of children in factories. Then from Article 25, 26, 27, and 28, there were the right to freedom of religion. Cultural and educational rights were covered under Article 29, 30. So this was all about. Then we talked about certain writs. Then Article 33, 34, and 35. So I hope you got certain clarity on the topics about the articles of the Indian Constitution. Thank you for the class. Have a nice day.